Morning students, this is Jiten Shah. Today I will explain class 8th class 7th English course book, chapter number 5. The name of the chapter is The Merchant of Venice. Okay, so first of all I will say something about this chapter's characters. The first character is साइलॉक. साइलॉक कौन है? एक जूइश मनी लेंडर है इन वेनिस. वेनिस में जो मनी को धार में देता है साइलॉक. एंटोनियो कौन है? एक मर्चेंट है एंड बेसिनियोस फ्रेंड. एक मर्चेंट है, व्यापारी है और बेसिनियो का दोस्त है. बेसिनियो कौन है? बेसिनियो एक जेंटलमैन है फ्रॉम वेनिस का, किंग्समैन एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ एंटोनियो. किंग्समैन मीन्स रिश्तेदार और एक तो क्लोज फ्रेंड है एंटोनियो का. पोर्शिया. पोर्शिया कौन है? एक वेल्दी लेडी है, धनी औरत है, लेडी है. बेलमोंट एंड बेसिनियोस वाइफ, और बेसिनियो की वाइफ है. नर्सिया कौन है? पोर्शिया की लेडी इन वेटिंग, मीन्स पोर्शिया की दासी है एंड कॉन्फिडेंसी है, मतलब इसको विश्वास पात्र वाली है. और द ड्यूक ऑफ वेनिस. जो ड्यूक ऑफ वेनिस है वो कौन है? द रूलर ऑफ द वेनिस, वेनिस के रूलर है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द चैप्टर एंड आफ्टर रीडिंग द चैप्टर आई विल explain this chapter in Hindi. Okay, so watch and listen carefully. Venetian merchant, he has sent several made ships out of the sea, and his friends think that Antonio is worried that his ships will sink during their perilous voyage. Antonio, however, is too smart to pull all his eggs in one basket. Antonio's friends Bassanio is about to make a secret trip in order to woo a girl he was fallen in love with. Bassanio had been careless with his money. He has lived extravagantly in the past and has even borrowed a large sum from Antonio. Now, however, he has fallen in love with a rich and beautiful heiress named Portia. He plans to go to Belmont where she lives to win her heart. However, Portia already had plenty of rich suitors. Bassanio needs to borrow more money so that he can appear to be rich to woo the lovely Portia. Okay, now Antonio cannot lend Bassanio's money. However, he offers to stand as guarantor for any loan Bassanio can get from Shylock, a money lender. Okay, now scene 1 of this story. Bassanio and Shylock are on stage discussing the terms of Bassanio's proposal loan based on Antonio's credit. Antonio joins them. Shylock, इसमें कन्वर्सेशन है Shylock और Bassanio के बीच में. Shylock, 3,000 ducats. Well, Bassanio, yes sir, for 3 months. Shylock, for 3 months? Well, ठीक है. Bassanio, for which, as I told you, Antonio shall be bound. Shylock, Antonio shall become bound. Well, Antonio is a good man, yet his means are uncertain. The man is not withstanding sufficient. I think I may take his bond. Bassanio, we assure you may. Shylock, 3,000 ducats. This is a good round sum. 3 months from 12. Then let me see the rate of interest. Okay. To Antonio, I will give you what you need and not charge a penny of interest. This is a kind of offer. Now Bassanio says, this really would be kind. Shylock, add a clause for a joke. If you do not repay me on the day we agree on, let the forfeit be an equal pound of your fair flesh. Now Bassanio is said to Antonio, you shall not sign such a bond for me. I'll rather live without the money. Okay, now Antonio is told, do not fear, within these 2 months I do expect to return 3 times the value of
his blood. Now Antonio said to Shylock, "Yes, Shylock, I will agree to sign the bond." Now scene second. Narrator. The story moves to Belmont, where Portia is choosing a suitor. Portia is a young, beautiful and wealthy heiress. Her father's will has made it impossible for her to choose her own husband. According to the will, each of her suitors must pass a test. They must choose between three boxes, one of gold, the second of silver, and the third of lead. Whomsoever chooses the correct box may marry Portia. Bassanio arrives and exchanges a glance with Portia. He selects the correct casket, which is made of lead. Portia and he rejoice. Meanwhile, Gretinio declares his love for Nursia. The couples decide on a joint wedding ceremony. The happiness of the wedding celebration is cut short by the news that Antonio's ship lost at sea. Now enter a messenger. Messenger आता है, प्रवेश करता है. Messenger, sir, I have a letter for you from Antonio. Bassanio reads the letter and seems upset. Now Portia is saying to Bassanio, "What is written in the letter, my lord?" Bassanio, "My dear friend Antonio's ship has sunk and hence he must surrender to the term of the bond made with Shylock." Okay, now Portia, how much does he own Shylock? Bassanio, 3,000 ducats. Narrator, when wealthy Portia learns about the amount of the bond, she immediately offers to pay 20 times over. However, the court hearing must take place. Bassanio and Gretinio immediately leave for Venice to try and save Antonio's life. After they leave, Portia plots with Nursia and the two women plans to go to Venice disguised as men. Now scene third. Courtroom scene. The Duke of Venice, Antonio, Bassanio, Gretinio and other enters. Duke is said, "What is Antonio here?" Antonio, "Yes sir, I am here." Duke, "I am sorry for you. You have come here to face our story adversary, a ruthless, inhuman enemy who is incapable of pity." Antonio, "I have been told you have done everything in your power to convince Shylock to forget our bargain. However, the man remains stubborn. There is no law to shield me from his malicious way. Now, Duke, one of you go and call the Jew into the court. Celerio, he is ready at the door. He comes, my lord." Now, Shylock enters the court. Duke, "Make room, let him stand before me, Shylock. Everyone here thinks you are doing this merely to scare Antonio. We think you plan to show mercy at the last second. That in fact will be stranger than the stranger cruelty you are now displaying, though you are here to collect your penalty, a pound of Antonio's flesh. We don't think you will actually take it. When his ships sank, he faced a great enough loss to put even the richest merchants in Venice out of business. We all expect a kind answer too." Now Shylock is said, "You know what I will do. I have sworn by the holy Sabbath to take my penalty. Refuse me and your city's law and freedom will be in danger. I hate Antonio, so why must I give a reason for demanding my penalty, even though it's unprofessional? Is that a good enough
answer. Now Bassanio is told that is no answer, you heartless man, nor does it excuse your actions. Shylock, I am not born to please you with my answers. Bassanio, not all men kill what they hate. Shylock, do all people not want to kill the things they hate? Bassanio, dislike is not the same thing as hatred. Now Shylock, would you let the same snake bite you twice? Antonio, I beg you, don't waste time arguing with him. Bassanio, you might as well ask the sea to be smaller. You may as well ask a wolf to tell you why he killed a little lamb and made a mother cry for it. Make him to no more offers. Don't try to stop him. Let me receive my punishment. Now Bassanio, you are own 3,000 ducats. Here I offer you 6. Shylock, I wouldn't accept 6 times that amount. I want my penalty. Duke, how can you hope for mercy yourself when you show none? Shylock, what judgment do I need to fear? I haven't done anything wrong. I have paid a lot for that pound of flesh, and now I want to refuse me, and the laws of Venice will lose their power. I wait for justice. Will I have it? Duke, upon my part, I may dismiss this court, unless Valerio, a learned judge, come here today. I had asked him to come and act as a judge to settle this matter. Now Valerio, my lord, here is a messenger waiting outside with a letter from Valerio from Padua. Nursia entered disguised as a lawyer's clerk. Duke, have you come, you Padua, from Valerio's office? Nursia, yes, my lord, Valerio greets your grace. She hands him a paper which he reads. Duke, this letter from Valerio recommends a young and learned doctor to our court. Where is he? Nursia, he waits for you to call him in. Duke, with my heart, there is therefore you despatch him. Now, you grace, I am very sick, luckily. Now Portia enters, displays a lawyer. Duke, did you Valerio send you here? Now Antonio, I do. Portia, then the Jews must be. Portia, the quality of mercy is not force, it must fall upon the earth. Now Shylock, yes, his breast, that is what the bond says, nearest the heart, those are exact words. So students, ये आपका जो चैप्टर है इसको आपको खुद से रीड करना है ना। इस चैप्टर से रिलेटेड इसकी हिंदी में हम इसकी समरी को आपको बताना चाहेंगे, सो उसको आप ध्यान से सुनिए। पहले हम पोएट के बारे में बताते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड के स्ट्रीट फूड ऑन आ वॉल नामक स्थान पर 26 अप्रैल 1564 ईस्वी को हुआ था। उन्हें बहुत अच्छी उच्च शिक्षा ना मिली क्योंकि उनके पिता एक किसान थे। शेक्सपियर ने 36 नाटक लिखे थे। उनके प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ, हेलमेट, लेयर, रोमियो जूलियट, वेनिस का सौदागर, बारहवीं रात, तिल का ताड़, शीतकाल की कथा, जिसमें से हम आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक के पात्रों और पूरे नाटक के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। वेनिस के व्यापारी नाटक के पात्र, कैरेक्टर्स द मर्चेंट ऑफ द वेनिस। इसमें पहला कैरेक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो वेनिस का एक धनी व्यापारी है। वह एक दयालु व्यक्ति है, एक सच्चा दोस्त भी है और उसके पास कई जहाज हैं। वह एक मधुर स्वभाव का व्यक्ति है। बेसिनियो एक धन का खोजी व्यक्ति है। वह कई जगहों से पैसा उधार ले चुका है। वह एक सच्चा प्रेमी है। वह बहुत भाग्यशाली है कि उसे एंटोनियो जैसा सच्चा दोस्त मिलता है। नाउ पोर्शिया इस नाटक की प्रमुख पात्र है।
वह एक धनी और अत्यंत सुंदर लड़की है। वह नाटक का केंद्र बिंदु है। वह अत्यंत सुंदर और उसकी सुंदरता पर वेसिलियो मोहित हो जाता है। पोर्शिया एक बुद्धिमान विवेकशील औरत है। वह कोर्ट में अपनी बात को बहुत विनम्रता से कहती है। वह भावपूर्ण भाषण देती है। मर्सी के श्रेष्ठ गुणों की प्रशंसा करती है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ महिला है। वह बहुत न्यायप्रिय औरत है। वह एंटोनियो का बचाव दयालुता के आधार पर करती है। वह एक सच्चा न्याय करती है। नाउ साइलॉक ज्यू एक यहूदी है। वह लोगों को उधार देता है, उन लोगों को पैसे उधार देता है, पर उस पर मोटा ब्याज लगाता है। वह अत्यंत निर्दयी झगड़ालू व्यक्ति है। वह अपनी बेटी से भी परेशान है। वह एंटोनियो से नफरत करता है। अब हमने इस नाटक के पात्रों के बारे में जानकारी दे दी है। अब हम इस नाटक के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ना बहुत वर्षों पहले वेनिस नाम की एक वैभवशाली नगरी थी। वहाँ एंटोनियो नाम का व्यापारी व्यापार करता था। वह बहुत दयालु धनी था। वेनिस के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उसके पास कई जहाज थे जिससे वह धन कमाता था। उसकी जहाज कई जगह अफ्रीका, चीन, जापान, इंडिया जाते थे। वहाँ से मसाले लेकर आते थे। एंटोनियो बाद में यूरोप में मसालों को बेचता था और मिलने वाले धन को कुछ जहाज को दे देता था और कुछ अपने पास रखता था। एंटोनियो के व्यवसाय में खतरा था कि उसकी जो शिप्स डूब सकती है। नाउ एंटोनियो का एक घनिष्ठ मित्र है वेसिलियो। एक सुंदर युवा है। वह एक खर्चीला व्यक्ति है। वह सोचता है कि मैं किसी सुंदर और धनी लड़की से शादी कर लूँ तो मैं भी धनी हो जाऊँगा। इस तरह उसकी पूरी जिंदगी चलती रहेगी। वैसे तो कई बार एंटोनियो से पैसे उधार ले चुका है। एंटोनियो को सच्चा दोस्त मानता है, इसलिए वेसिलियो को पैसे दे देता है। वेसिलियो एक धनी लड़की को ढूंढ लेता है। वो पोर्शिया है जो वॉलमेंट में रहती है। पोर्शिया एक सुंदर और धनी लड़की है। सोचता है कि उससे शादी करने के बाद एंटोनियो को उसके सारे पैसे दे देगा, लेकिन वेसिलियो के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वह अच्छे कपड़े पहन सके और पोर्शिया को आकर्षित कर सके, अमीर घर के लड़कों की तरह दिख सके। वेसिलियो एंटोनियो से कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं पोर्शिया को दे सकूं कि मैं भी अमीर आदमी हूँ, मतलब दिखा सकूं कि मैं भी अमीर आदमी हूँ। वह एक अमीर आदमी से ही शादी करेगी, भिखारी आदमी से नहीं। एंटोनियो कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा शिप्स में इन्वेस्ट कर दिया है। एंटोनियो ने कहा कि अगर तुम ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो मैं पैसे दे सके तो मैं बीच में आ जाऊंगा और गारंटी ले लूँगा। दोस्त होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। इधर पोर्शिया के साथ भी दिक्कत है कि उसके पिता ने मरने से पहले एक ऐसा टेस्ट रखा था कि 3 ताबूत 3 कैस्केट रखे जाएं। पहला गोल्ड का, दूसरा सिल्वर का तथा तीसरा लीड का होगा। जो सही ताबूत चुनेगा वही तो पोर्शिया से शादी करेगा, नहीं तो जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। वेसिलियो को एक उधार देने वाला मिल जाता है। उसका नाम है साइलॉक जो एक ज्यू है। 14वीं सेंचुरी में सारे मनी लेंडर होते थे, लेकिन क्योंकि क्रिश्चियनिटी में लोन देने पर इंटरेस्ट लेना मना था, इसलिए यह काम ज्यू करते थे। साइलॉक पैसे का लालची इंसान था। वह एक निर्दयी जिद्दी व्यक्ति था। वेसिलियो साइलॉक के पास जाता है और साइलॉक 3000 गोल्ड कॉइन्स वेसिलियो को देता है जिससे वह अच्छे से तैयार हो सकता है। वह कहता है कि आपके सारे पैसे एंटोनियो देगा। एंटोनियो और साइलॉक एक दूसरे को जानते हैं। एंटोनियो और साइलॉक एक दूसरे से नफरत करते हैं क्योंकि एंटोनियो ने साइलॉक को व्यवसाय में काफ़ी नुकसान पहुंचाया था ना। एंटोनियो ने अपनी पसंद नहीं, एंटोनियो जो इसको पसंद नहीं करता था क्योंकि जो इस पर लोन पर इंटरेस्ट लेते हैं इस वजह से वह शायद आपको पसंद नहीं करता है। साइलॉक, मैं तुमसे शरीर के कहीं भी हिस्से से 1 पाउंड मांस लूँगा। यह बात सुनकर एंटोनियो और वेसिलियो सुनकर चौंक जाते हैं। एंटोनियो ने सोचा है कि मेरे 5 जहाज कुछ दिनों में आ जाएंगे। एंटोनियो इस बात को मान लेता है कि वेसिलियो ने रोका कि मुझे 3000 गोल्ड कॉइन नहीं चाहिए, लेकिन एंटोनियो ने समझाया। एंटोनियो ने साइलॉक के बॉन्ड पर साइन कर दिया। साइलॉक
अपनी ज़िंदगी से परेशान था। साइलॉक एक बेटी थी जिसका नाम जेसिका भी साइलॉक के घर रहकर परेशान हो गई थी। उसका एक प्रेमी था लोरेंजो। एक रात जेसिका साइलॉक का काफ़ी रुपया लेकर भाग जाती है, इसलिए साइलॉक परेशान रहता है। बेसिनियो 3000 गोल्ड कॉइन से अच्छे कपड़े सिलवाता है और वह वॉलमेंट में पोर्शिया से मिलने जाता है। पोर्शिया भी पसंद करती है, बेसिनियो से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। वेनिस में एंटोनियो अकेले होता है। जब एंटोनियो को पता चलता है कि उसकी शिप्स रास्ते से आ रही थी, वहाँ तूफान आ गया है और शिप्स डूब गई हैं। एंटोनियो यह सुनकर दुखी हो जाते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि साइलॉक को 3000 गोल्ड कॉइन्स देना है। अगर 3000 गोल्ड कॉइन ना दे पाए तो उसके शरीर से 1 पॉन्ड फ्लैश ले लेगा, मांस ले लेगा। बेसिनियो को जब इस बात का पता चलता है तो पूरी बात पोर्शिया को बताता है कि हमें एक करने में एंटोनियो का बहुत बड़ा सहयोग है। एंटोनियो मेरा दोस्त है, उसने मेरे लिए बहुत किया है। पोर्शिया सुनकर कहती है कि तुम 3000 गोल्ड कॉइन्स का दुगना लेकर जाओ और अपने दोस्त का कर्ज चुका दो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। बेसिनियो एंटोनियो को बचाने के लिए वेनिस जाता है। उधर पोर्शिया कुछ देख सकती, कुछ सोचती और एक अलग प्लान बनाती है कि वह भेष बदलकर एक आदमी की तरह मेल वकील बनकर कोर्ट में जाती है। वह अपना नाम बोल्टाजर रखती है। कोर्ट में बेसिनियो और एंटोनियो होते हैं। उस वक्त औरतों को कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए पोर्शिया लड़कों की तरह मूछें और दाढ़ी शर्ट पहनकर कोर्ट में जाने के लिए तैयार होती है। साइलॉक अपनी बात पर अड़ा होता है कि उसे एंटोनियो का 1 पॉन्ड मांस चाहिए। एंटोनियो बहुत विनती करता है कि मुझे छोड़ दो, यदि तुम मेरा मांस लोगे तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन साइलॉक एक जिद्दी व्यक्ति है। बेसिनियो भी साइलॉक से कहता है कि तुम 3000 गोल्ड कॉइन की जगह 6000 गोल्ड कॉइन ले लो, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दो। लेकिन साइलॉक को पैसे नहीं चाहिए बल्कि उससे बदला लेना है, क्योंकि एंटोनियो ने कई लोगों के सामने उसकी बेइज्जती की थी। एंटोनियो निवेदन करता है कि तुम मुझे मत काटो। उसी दौरान पोर्शिया वकील बनकर वहाँ पहुँचती है और एंटोनियो के समर्थन में दलीलें पेश करती है। जैसे ही साइलॉक चाकू लेकर एंटोनियो की तरफ बढ़ता है तो पोर्शिया लॉ के बारे में बताती है कि कोई भी व्यक्ति क्रिश्चियन का खून नहीं बहा सकता, यह बॉन्ड गलत है। वह समझती है कि कोई जीव क्रिश्चियन खून नहीं कर सकता। साइलॉक से कहती है कि एंटोनियो का मांस काट सकते हो, लेकिन उसके शरीर का खून नहीं निकलना चाहिए। वहाँ बैठे सभी जजों ने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा जिससे यह बॉन्ड बनाया है वह गलत है। साइलॉक समझ गया कि अब वह फंस गया है। वह कहता है कि मुझे 3000 गोल्ड कॉइन दे दो। वहाँ बैठे सभी लोग ये समझ गए हैं कि साइलॉक गलत और एंटोनियो सही है। साइलॉक कोर्ट से जाने वाला ही था। पोर्शिया जो एक वकील भेष में होती है वह रोकती है कि नहीं तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। तभी एंटोनियो साइलॉक से कहते हैं कि तुम्हें माफ़ी तभी मिलेगी जब तुम अपना धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बनोगे। जो तुम्हारी बेटी जेसिका है उसे तुम अपनी पूरी जायदाद दोगे। साइलॉक को मजबूरी में यह शर्त माननी पड़ी। पोर्शिया जो वकील बनकर गई थी उसे एंटोनियो और बेसिनियो उपहार स्वरूप कुछ देना चाहते हैं, तो पोर्शिया जो वकील है उसे वही अंगूठी मांगी जो उन्होंने अपनी वाइफ पोर्शिया को दी थी। जैसे बेसिनियो उस वकील को अंगूठी दी वैसे ही पोर्शिया अपने वास्तविक रूप में आ गई। इस तरह विलियम शेक्सपियर की द मर्चेंट ऑफ वेनिस कहानी खत्म होती है। स्टूडेंट्स, आपको ये कहानी पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहानी ये पसंद आए तो मुझको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे बताएंगे, ठीक है। और ये स्टोरी तो थी, मैंने इसमें आपको हिंदी में इंग्लिश में उसको रीड कर दिया है और इसकी हिंदी भी मैंने आपको बता दी है। अगर इस स्टोरी में अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूज़न लगे तो मुझसे मेरे इंग्लिश के व्हाट्सएप ग्रुप से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ओके। और ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 5 क्लास 7 का, ये आपका लेक्चर 1 वीडियो है। इसके क्वेश्चन आंसर्स
डिफरेंस क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 2 वीडियो में बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू।